والسلام عليك يا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وصحابك وصحابك يا شفيعنا يا شفيعنا يوم الجزاء. يوم الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. اور آسان اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریف تمام پرشنسا اللہ تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے. اور رحمان الرحیم بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ عز و جل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان کا جن پر تم نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم. نہ ان کا جن پر غضب ہوا. ولا الضالین. اور نہ بہکے ہوئے کا. یہ ہو گیا اعلیٰ حضرت کا درجہ. اب اس کو آسان کے طور پر ہم سمجھا رہے ہیں کہ সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় তারিফ শুধু আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি মালিক সারা জগতের পালনহার. আর রহমান রহিম অতি দয়ালু, সবচেয়ে বেশি দয়ালু রহমকারী. মালিক ইয়াউমিদ্দিন কিয়ামতের মালিক. ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন. এ আল্লাহ ও মওলা, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি. ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন. আর তোমার কাছ থেকেই আমরা সাহায্য চাই. ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম. এ আল্লাহ আমাদের सीधा रास्ता, যেটা सीधा रास्ता ওই রাস্তাতে আমাদের চালাও. সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম. ওই রাস্তাতে যেই রাস্তাতে তোমার দয়া রয়েছে, তোমার ইহসান রয়েছে. গরিব মাগফুর আলাইহিম ওয়া দাল্লিন. না ওদের রাস্তা যার উপরে তোমার আটকার রয়েছে. ওয়া দাল্লিন. না ওদের রাস্তায় যাদের প্রতি তোমার ফটকার, যারা পথভ্রষ্টকারীদের রাস্তায় আমরা যেন না চলি. আমরা যেন ওই পথে চলতে পারি যেই পথে চলার কারণে তোমার দয়া রয়েছে এবং তোমার রহম রয়েছে. प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, ये कल परसों बताया था कि इसके बहुत सारे नामों में से एक नाम सूरतुल दुआ है. सूरह फातिहा से बढ़कर और इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है. और ख़ासकर ये सूरह फातिहा जब नमाज में हम पढ़ते हैं तो नमाज में पढ़ते हुए अगर हम इसका माना सोचते हैं, इसके माने पर गौर करें कि हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में हम क्या कह रहे हैं, अगर ये हमें पता हो जाए तो नमाज मुझको, हमको, आपको, सबको और भी मजा आ जाएगा. আমরা নামাজ পড়ছি কিন্তু জানি না যে কি বলছি. রটা আছে, সূরা ফাতিহা মুখস্থ আছে, পড়ছি, কিন্তু সূরা ফাতিহাতে কি আছে, কি বলছি, আরবি ল্যাঙ্গুয়েজে কি বলতে চাই, এগুলো যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তাইলে নামাজে যে একটা ধ্যান এদিকে ওদিকে যায় যাবে. আজিজ আল মিল্লাত ইসলামিয়া,
তো এই সূরা ফাতিহার অনেক নাম, ওর মধ্যে একটা নাম সূরাতুল দোয়া। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, এই আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলাও, সঠিক পথ। তো সঠিক পথ কোথায়? যে জায়গায় থাকি সেই জায়গায়। আর এর থেকে উত্তম সময় আর এর থেকে উত্তম টাইম, উত্তম জায়গা হতেই পারে না দোয়ার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ না? দোয়ার জন্য এর থেকে উত্তম জায়গা, সময়, সুযোগ কোথাও होते पारे। कारण उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद, तकबीर तहरीमा इसलिए उसको बोलते हैं कि उस तकबीर के बाद दुनिया का हर काम हराम हो जाता है। अब सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का बंदा, बीच में तीसरा कोई नहीं, बीच में कोई तीसरा है नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात है। और जो इबादत कर रहा है, पढ़ रहा है, वो है। तो हम नमाज में अगर ये सोचें, ख्याल करें, माने पर ध्यान करें, तो हमारी नमाज इंशाअल्लाह कबूल होगी। मैंने कहा था आपसे कि अगर एक एक लफ्ज़ की मैं तफसीर करूँ तो सूरह फातिहा में कई महीने लग जाएंगे, कई महीने लगेंगे, कई हफ्ता की कई महीने लग जाएंगे। तो हम सिर्फ मुख्तसर करके बयान करेंगे। तो देखिए, तमाम तारीफ, समस्त प्रशंसा, যাবতীয় तारीफ, सताइश তার জন্য अल्लाह पाक। अगर आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, तो हकीकत में तारीफ और प्रशंसा उसकी नहीं हो रही है, वो अल्लाह की हो रही है। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, इस चीज़ को देखिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, बड़ी अच्छी है। इस क्या अच्छी चीज़ है, बड़ा शानदार है। तो तारीफ इसकी तो हो रही है, मगर हकीकत में इसकी तारीफ नहीं हो रही है। जिसने बनाया है उसकी तारीफ। अगर वो अच्छे से बनाया नहीं होता तो इतना अच्छा नहीं बनता ना। वैसे आप चाहे इंसान की तारीफ कीजिए, मस्जिद की तारीफ कीजिए, है ना, रसूलुल्लाह की तारीफ कीजिए, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ कीजिए, आप तारीफ जिसकी भी कीजिए, हकीकत में वो तारीफ अल्लाह की हो रही है। अब यहीं पे बहुत सारे मसाइल आप समझ लीजिए, है ना, कि अगर कुछ लोग नबी की तारीफ बहुत करते हैं और करना ही चाहिए, खुदा के बाद सबसे ज़्यादा तारीफ किसकी होनी चाहिए? रसूलुल्लाह की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नेमत नहीं, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, रसूलुल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई ज़ात है ही नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह की तारीफ खुदा के बाद सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह की तारीफ हकीकत में ये अल्लाह ही की तारीफ है। जैसे ये सामान की तारीफ हकीकत में कारीगर की तारीफ, तो तमाम तारीफ अल्लाह की है। तो आप जिसकी भी तारीफ करिए, नियत कर लीजिए कि हकीकत में तो अल्लाह की तारीफ हो रही है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया तो ऐसा होगा, अल्लाह नहीं बना तो नहीं होगा। और रहमान और रहीम, बहुत मेहरबान, रहमत वाला, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। यहाँ जो सेटिंग है, सेटिंग में भी बहुत सारे सवाल और जवाब आते हैं। सेटिंग कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, यानी पहले अल्लाह की तारीफ हो गई, और रहमान रहीम, फिर अल्लाह ताला के खास खास नामों का जिक्र हुआ, फिर मालिक यौमिद्दीन, फिर रोज़े जज़ा का वो मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो पहले अल्लाह की तारीफ हो गई, फिर अल्लाह रहमान रहीम है, इस बात का ईमान होगा। तो इससे अकीदा ये बना कि सबसे पहले ईमान है, अमल है। इय्याक नअबुदु से अमल शुरू हो रहा है, और इय्याक नअबुदु से पहले ईमान का जिक्र है। वहाँ ईमान का शब्द तो नहीं है, ईमान शब्द तो नहीं, किंतु इय्याक नअबुदु पूर्वे अल्हम्दु থেকে নিয়ে মালিক ইয়াউমিদ্দিন পর্যন্ত এই পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঈমানের, যে আগে আল্লাহকে এক মানতে হবে আর আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। আর সব থেকে
সবচেয়ে বেশি প্রশংসা কার হওয়া উচিত? আল্লাহ। কেন? কি বলেছেন আল্লাহ তাআলা? সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্য। और यहाँ इंसान 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में शायद 24 मिनट भी अल्लाह की तारीफ नहीं करता है, दुनिया की तारीफ में लगा हुआ है। अल्लाह की तारीफ देखिए, हमको अगर यहाँ किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उधार कर्जा ये वो लेते हैं, काम चला लेते हैं, मगर क़यामत के दिन कुछ उधार मिलने वाला नहीं है। एक एक नेकी को आप तरस जाएंगे, एक एक नेकी को आप तड़प जाएंगे, मगर माँ भी नहीं देगी, बाप भी नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं। आप जो कमा के जाएंगे उसी पर आप डिपेंड कीजिए। भरोसा आपने ही किए हुए मतलब करना हो। मर जाएंगे, कौन करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी है? और कोई करेगा उसका तो कोई होगा भी कि नहीं होगा, ये भी तो गारंटी है। बस मानिए, इसलिए खुद आप कीजिए। अब मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। आप 24 घंटे को इबादत में बना सकते हैं। क्या 24 घंटा को अगर आप चाहेंगे कि आपका 24 घंटा इबादत में गुजरे और 24 घंटा आपको अल्लाह ताला सवाब दे, तो आप इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर से निकले, नियत कर लीजिए कि मैं किसी भी, अगर रास्ते में कोई बुरी चीज़ होगी मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगा, हिदायत करने की कोशिश करूँगा। मुसलमान मिलेंगे तो मैं सलाम करूँगा, कोई गरीब मिलेगा तो उसको सदका व खैरात करूँगा, कोई अगर मासूम व मजबूर है तो उसका हेल्प करूँगा। उसके बाद नमाज पढ़ूँगा, नमाज के बाद तफसीर में बैठूँगा, पूरी तफसीर सुनने के बाद मैं घर आऊँगा। अगर ये आपने नियत कर ली, नियत, तो इस नियत की बरकत से इतना फ़ायदा होगा आपको कि आपको कोई फ़कीर मिले या ना मिले मगर आपको सवाब मिल जाएगा। कोई लाचार मिले ना मिले, आपको नियत करने की वजह से सवाब मिल जाएगा। आपने नियत कर ली थी नमाज पढ़ेंगे, तफसीर में बैठेंगे, मगर इत्तेफाक ऐसा हो गया कि आपको हॉस्पिटल चला जाना पड़ा, आ नहीं सकते, मगर आपकी नियत पक्की हो गई थी। तो जानते हैं, आपने तफसीर नहीं सुनी, जमात से नमाज भी आप नहीं पढ़ सके, मगर आपको तफसीर से लेकर, घर से निकलने से लेकर तफसीर होने तक ये पूरा टाइम है। इस टाइम में आपको जितना सवाब अल्लाह देगा, आप हॉस्पिटल चले गए हैं फिर भी आपको अल्लाह उतना सवाब अदा करेगा। यूँ अगर आप पूरे 24 घंटे को नियत से घेर लें, नियत से घेर लें, इसलिए फरमाया गया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होता है, क्योंकि नियत का सवाब इतना है कि पूरी फिजा भर जाए, और अमल का उतना ही सवाब है आप जितना अमल करेंगे। आपने যতটুকু আমল করবেন ততটুকুই সওয়াব, কিন্তু নিয়ত এমন যে নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়তের যত বড় ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে, নিয়তের যত ডিস্টেন্স থাকবে, তত দূর পর্যন্ত সওয়াবে সওয়াব আছে। लिहाजा आप नियत कर लीजिए। अब यहाँ से जब आप उठेंगे तो आप नियत कर लीजिए कि मैं इंशाअल्लाह जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ूँगा। अगर आपने ये नियत कर ली, आप सो रहे हैं ना, तो आपका ये सोना ये भी इबादत में शुमार होगा। और अगर आप बगैर नमाज पढ़े इंतकाल कर गए तो आप नमाजी होकर के आपका इंतकाल लिखा जाएगा। इसलिए मोमिन को चाहिए कि अच्छी नियत करें, अच्छी नियत करेंगे तो उसका बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। हाँ, तो ये अर्ज कर रहा था कि मालिक यौमिद्दीन पर्यंत ईमान और इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्ताईन पर्यंत इबादत, और इहदिनास सिराताल मुस्ताकिम থেকে নিয়ে বলা দাওয়ালিন পর্যন্ত দোয়া। এই তিনটা জিনিস এখানে মেন ভূমিকায় আছে। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আর ইবাদত, আল্লাহর জন্য ঈমান, তারপরে ইবাদত, আর ইবাদতের পর দোয়া। এই জন্য ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। दुआ के बारे में आया, तिरमिज़ी शरीफ में इसका शुक्र। अब
دعا مخل عبادت، دعا عبادت کی جان ہے، مغز ہے، مغز سمجھتے ہیں نا، بھیجا. اگر آدمی کا بھیجا نہیں ہے تو پورا جسم بیٹا ہے تو وہ پاگل ہے، اور بھیجا ہے تو سب کچھ ہے. تو اب عبادت کا مغز دعا ہے. تو اگر ہم دعا نہیں مانتے ہیں نا، حدیث شریف میں آیا ترمذی مشکل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض رہتا ہے جو بندہ دعا نہیں مانتا ہے. اس بندے پہ اللہ ناراض رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ارے بندے تم کو پتا ہے کہ میں دوں گا تو ہی تم کو ہو سکے، میرے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں. আমি ছাড়া আপনার গতি নেই, তো তুমি আমার কাছে চাইছো না কেন? কেন চাইছো আমার কাছে? তোমাকে শুধু আমার কাছেই চাওয়া উচিত. उसके बाद हादीस में ये भी कि बंदा जब अच्छा है, सेहतमंद, रोग नहीं है, बीमार नहीं है, अच्छा है, हम दुआ कर मांगते हैं. जब मुसीबत में हम फंस जाते हैं, जब दुख आता है, बला आती है तो दुआ मांगते हैं. तो ऐसे वक्त में दुआ कब कबूल होती है? अच्छा अब आए हो, यानी अब गाड़ी फंस गई है तो आए हो. इसलिए हदीस में आया कि जब कोई दुख बला मुसीबत ना हो और आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, उस वक्त अल्लाह के बारे में दुआ मांगते रहो, ताकि जब मुसीबत आए तो उस वक्त जब दुआ करोगे तो इस अच्छी जिंदगी वाली दुआ की वजह से वो दुआ कबूल हो जाएगी. इसलिए हमेशा दुआ करते रहिए, हमेशा दुआ करते रहिए. ठीक है. अब ये इतनी अच्छी दुआ है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला. अगर आप दुकानदार हैं तो इस दुआ का मतलब ये है, अल्लाह मैं दुकानदारी करूं तो ईमानदारी वाली दुकानदारी करूं. अगर डॉक्टर है तो ये अल्लाह मैं ईमानदारी के साथ अपने पेशेंट का इलाज करूं. गर्ज ये कि आप जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन के हिसाब से आप दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह की बात है. अब जब आप नमाज पढ़ते हैं ना तो उस टाइम ये दुआ ज्यादा कबूल होने के करीब होती है. ठीक है. लिहाजा ये दुआ मांगना कितनी बेहतरीन दुआ है. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला. हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, जिस पोजीशन में भी रहें, जिस सिचुएशन में भी रहें, जे अवस्थाय थाकी ना केन, ऐ अल्लाह যেন सीधा रास्ता যেন চলতে পারে, মওলানা তুমি दुआ বরকত করিও. तो ये हो गई नमाज के अंदर की बात. लिहाजा नमाज में पढ़ी है तो इसको ध्यान में रखिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या माना होगा ऐसा, है ना. अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब नमाज पढ़ता हूँ और खासकर जब पढ़ाता हूँ तो बेफजली ताला जो मैं पढ़ता हूँ तो मुझको उसका माना मालूम है, उसकी तफसीर मुझको मालूम है. तो बड़ा मजा आता है कि तो मेरा रब क्या कह रहा है, रब मेरा क्या कह रहा है. तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आदमियों के लिए नहीं, सबके लिए है, ये सबके लिए. हाँ, तो नमाज के अंदर की बात हो गई. अब अगर कोई नमाज के बाहर इस सूरत को पढ़ना चाहे तो नमाज के बाहर भी दुआ के तौर पर इसको पढ़ सकता है. हदीस शरीफ में आया कि अगर कोई मुकम्मल तवज्जो के साथ, एक सुरी के साथ, ध्यान और तवज्जो के साथ सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़ेगा तो उस 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के जो दुआ मांगेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दुआ कबूल फरमाएगा, उसकी मुराद पूरी फरमाएगा. लिहाजा ये एक अमल होती है. आप बच्चों से पढ़वाइए, छोटे छोटे बच्चों से पढ़वा के दुआ कराइए तो और ज़्यादा कबूल होने का चांस रहता है. क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बेगुनाह होते हैं, जिसको हम झड़कते हैं ना उसको झड़की ना, वो हमसे बहुत अच्छा है क्योंकि अभी उस पर कोई इबादत फर्ज नहीं है तो वो बेगुनाह है. और हम लोग तो गुनाह करते रहते हैं. तो जब गुनहगार की अल्लाह कबूल करेगा तो जो बेगुनाह है उसकी तो बदले औलाद हो गए. लिहाजा बच्चों को भी सिखाइए, माँ बहनों को सिखाइए और कसरत से इस सूरत को पढ़िए. तो आज आपने क्या सुना? 3 बातें. नमाज के अंदर की बहुत बेहतरीन दुआ है,
اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے مسجد میں آ کے آپ پڑھ رہے ہیں، مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسی حالت کہ آپ اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، تو آپ گویا کہ معراج میں خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔